will start, there should be some preventive, the law and disciplines and how to proceed with. Okay. Hello. My voice is audible to you, all of you? Doctor? Doctor? Hello? Sir, you're audible, sir. Sir, you're audible. I'm not getting any voice from all of you. Sir, you are audible, sir. Audible. Yes. Okay. So I'm starting with this share, with this screen, in fact. Just a moment. So the first thing I have told you, the startup about this, how to find an idea. We will start with the observation, web browsing, book reading, writing journal, social outside your normal cycles. After that, the next cycle is the idea creation. The idea is creating, if it is relevant, if it is start with, and suppose हमने समझ लिया कि हाँ जी ये आइडिया बहुत अच्छा है, हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर रेलिवेंट है, इफ इट इज रेलिवेंट, देन वी स्टार्ट विथ, वी आर मेकिंग द quality and the with the time frame means within time frame whatever we have decided, say 1 day or 10 days, in 10 days we have decided yes this business is good and we will start with. So that is the good thing in fact, and that is the relevant. If it is not relevant, then we are dropping it. Same the idea diffusion means 10 to 15, in the 10 to 15% we have started with. If we have started within 10-15%, 20%, 15-20 days, we have it came in our mind, yes we have to start with and we have to proceed with. So idea started to diffuse. And if it is not, then if it is taking more time, then we are crossing it. Okay. Next, how to find an idea. Suppose if something is coming in our mind and we are going to start with the idea is relevant for us and we have understood about that idea, so we started to go for it, right? In this is good for the long term. And if it is not relevant to me, that means not priority, so then forget it. Okay. Next, IPR types. First, let me tell you about the startup. When we have started and we have kept it in our vision, yes, this idea is good and this is relevant for our business. Then we have started and we want to proceed with. Okay. तो नेक्स्ट अब क्या आता है हमारे दिमाग में, ये आता है कि इस आइडिया को कैसे सेफगार्ड किया जाए. तो दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. उसमें क्या है ना, क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब हमारे ब्रेन में आया कि ये इंटेलेक्ट कैसे इंटरेक्ट करेंगे और इसको कैसे सेफगार्ड करेंगे. तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जा रहा हूँ. जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है. Students, will you tell about anything? Do you have any idea about this patent, trademark, copyright, geographical indications, industrial design? कोई बताएगा हमें? डॉक्टर साहब. सर बेसिकली डॉक्टर साहब कोई हाँ मेरी आवाज जा रही है क्या स्टूडेंट्स के पास? एक्चुअली ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही बोले जा रहा हूँ, कोई पीछे से किसी आवाज नहीं आ रही है. It is audible to all of you? Yes, sir. Clearly audible, sir. स्टूडेंट्स को भी बोलिए, स्टूडेंट्स को भी अलाउ कीजिए, वो लोग भी कुछ बोले तब, ताकि हमें भी लगे ना कि उनके पास कुछ ग्रैप्स कर पा रहे हैं. स्टूडेंट्स, आप लोग कुछ ग्रैप्स कर पा रहे हैं हमारी बातों को, कुछ अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? जी सर.
Okay, okay. Students, can you listen me? Yes, sir. Yes. बेटा आपने कुछ बोला था अमीसा कुमारी. I think she has told something. आपको स्टार्टअप के बारे में कुछ पता है? कुछ बताएंगे स्टार्टअप के बारे में? हेलो अमीसा, आई एम टॉकिंग टू यू. मैं आपसे पूछ रहा हूँ अमीसा. सर मुझे कुछ आइडिया नहीं है. अच्छा चलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या है बेसिकली. तो ये जो स्टार्टअप के बारे में मैं बोल रहा था. स्टार्टअप क्या है कि जैसे हमने कोई बिजनेस के बारे में थिंक किया, बिजनेस के बारे में सोचा कि ये बिजनेस हमें स्टार्ट करना चाहिए, इस बिजनेस के को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना. तो इस बिजनेस को बेसिकली क्या है, देखिए स्टार्टअप क्यों, स्टार्टअप का माइंड कहाँ से आया. हमारे गवर्नमेंट ने भी इसमें कुछ ये दिया है, प्रोविजंस किया है. स्टार्टअप मतलब ये होता है कोई भी एक नया बिजनेस जब आप शुरू करेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि इस बिजनेस को हमको कैसे लॉन्ग रन में बढ़ानी चाहिए. डॉक्टर साहब मेरा ये स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोग के पास? यस सर. सर ये स्क्रीन आ रही है? नहीं सर स्क्रीन नहीं आ रही है. स्क्रीन आ रही है सर. ओनली यू आर विजिबल, नो स्क्रीन शेयर. नॉट स्क्रीन. जस्ट मोमेंट डॉक्टर साहब, मैं ना स्क्रीन को शेयर करता हूँ इसको. देखिए अभी आ रहा है? यस सर विजिबल नाउ. अभी आ रहा है? हाँ सर विजिबल. हाँ. तो क्या है बेसिकली क्या है, जब हमने स्टार्टअप के बारे में सोच लिया, स्टार्टअप के बारे में स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि स्टार्टअप बेसिकली एक बिजनेस के बारे में बताता है जो हमारे माइंड में आता है कि हमें ग्रो करना चाहिए स्टार्ट बिजनेस के साथ. इसमें क्या है, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे समझ लीजिए हमारे लिए बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इनकम टैक्स के बेनिफिट है, अदर बेनिफिट्स है, फंड रेजिंग के बेनिफिट्स है. तो इसीलिए स्टार्टअप को शुरू किया गया. गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा प्रमोट किया है इसको. और स्टार्टअप क्या होना चाहिए, स्टार्टअप के बारे में बताया है कि स्टार्टअप है क्या बेसिकली. तो अभी क्या है कि जो हम अभी मैंने शुरू किया, अभी जस्ट आपको मैंने पहले बताया था कि स्टार्टअप हमने आइडियाज क्या आइडिया होने चाहिए, उसको आइडिया कितनी रिलेवेंट है और कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे. अब आता है नेक्स्ट कि हम इसको सेफगार्ड कैसे करेंगे. तो सेफगार्ड करने के लिए हमारे पास है 2-3 पॉलिसी जो कि हमें बताई गई है, गाइडलाइंस है. पैटेंट है. पैटेंट क्या है कि पैटेंट बेसिकली आप एक चीज को डिजाइन करते हैं, आप परफॉर्म बनाते हैं कि नहीं ये हमारा पैटेंट रहेगा. इस तरह जैसे मारुति ने अपना अलग अपनी कार की पैटेंट बनाती है, हीरो होंडा अलग बनाता है. तो एक डिजाइन बेसिकली एक डिजाइन क्रिएट हो जाता है कि ये पैटेंट हमारा रहेगा. इस तरह का जो भी फॉर्म बनेगा, जैसे जैगवार है, जैगवार अपनी पैटेंट अलग ही बनाता है 70 आइटम्स का. आपने देखा होगा उसके प्रोडक्ट्स अलग ही तरह के एक वर्ग के आते हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट्स अलग होते हैं. तो ऐसे ही एक डिजाइन बना दिया जिसमें एक्सक्लूसिव राइट आपको मिलता है कि आप उसके जो आपने इन्वेंशन किया है इस तरह का पैटेंट सिर्फ आप ही चलाएंगे, कोई और कॉपी नहीं करेगा. तो उसके लिए रजिस्टर्ड कराना होता है. दूसरा आ गया ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क क्या है कि आपने जो भी गुड्स सर्विसेज के लिए रजिस्टर्ड कराया, जो भी आपने ट्रेडमार्क रखा, कोई भी उसमें ये आपने लोगो लगाया, वो लोगो सिर्फ आपके लिए दिखेगा. जैसे आप फिलिप्स का एक लोगो देखते हैं, आप रिलायंस का आर देखते हैं लोगो, या मारुति के एम देखे, या मतलब जैसे कोई भी कार्स हम लेते हैं तो कार में अपनी लोगों ने ये हीरो होंडा का अपना एच लगा देता है. ये जो बेसिकली लोगो है ये ट्रेडमार्क के रूप में जाना जाता है और इसको भी रजिस्टर्ड किया जाता है. कॉपीराइट मतलब ये अगर जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो प्रोडक्ट सिर्फ आपका ही होगा, मार्केट में किसी और के पास नहीं होगा. सेम मतलब ऐसे ही कॉपी करके और कोई दूसरा नहीं बना पाएगा, उसके लिए भी कॉपीराइट किया जाता है. ठीक है. तीसरा है जियोग्राफिकल इंडिकेशन कि आप कहाँ बनाएंगे इस प्रोडक्ट को. आप इंडिया में बना रहे हैं, आप किसी अदर कंट्री में बना रहे हैं, इंडिया में भी बना रहे हैं, तो किस स्टेट में बना रहे हैं, सो दैट उस स्टेट में, उस कंट्री, उस लोकेशन में कोई और आपका कॉपी नहीं करेगा. उसी के बारे में मतलब वो उस जियोग्राफिकल जो भी आपका लोकेशन होगा उस लोकेशन में सिर्फ आप ही रखेंगे. आप उस जगह का नाम देंगे प्लेस ऑफ ओरिजिन. अब चाइना का हम लोग देखते हैं, चाइना का प्रोडक्ट है तो लिख देता है मेड इन चाइना.
इंडिया का रखता है मेड इन इंडिया, दैट मीन्स मेड इन इंडिया। अगर इंडिया का प्रोडक्ट है तो ये आइटम अगर चाइना में बनता भी है तो ये इंडिया का प्रोडक्ट अलग रहेगा, चाइना का प्रोडक्ट अलग रहेगा। ये है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इसकी डिजाइन कैसी होगी, नीचे देखिए हमने पिक्चर्स डाल रखे हैं। ये जैसे बेसिकली क्या है, पैटेंट के लिए डाल रखा है कि ये पैटेंट हो गया, ये ट्रेडमार्क मीन्स लोगो हो गया, ये है कॉपीराइट कि ये जो भी आपने अपना बना रखा ब्रांड उसको कोई कॉपी नहीं करेगा। ये लोकेशन हो गया, इस लोकेशन में इस शेप में आप बनाएंगे। ये एक अपना इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, जीआई जैसे हमने डाला। नीचे और लोगो दिया हुआ है जस्ट एग्जांपल समझने के लिए कि जैसे मैकडोनाल्ड क्या काम करता है, अपना एम का बोर्ड लगा दिया, तो ये एक ट्रेडमार्क है। ये पैटर्न नहीं हुआ, ट्रेडमार्क हुआ कि हमने एम, जहां भी आप एम देखेंगे इस तरह का देखेंगे तो दूर से भी आप पहचान लेंगे हाँ ये मैकडोनाल्ड है। मतलब जरूरी नहीं है उसके अंदर जाने, बाहर से ही आप देख करके पहचाने कि मैकडोनाल्ड अपना काम कर रहा है। ऐसे ही कॉपीराइट है, सीक्रेट फॉर्मूला जैसे ट्रेड सीक्रेट क्या है आपका, या पैटेंट आपने किस तरह का डिजाइन बना रखा है, ये डिजाइन आपका है। जस्ट समझने के लिए है, ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं, ये पैटेंट है, ये मोबाइल का पैटेंट है, ये कॉपीराइट, ये डॉग का दिखाया हुआ है ट्रेडमार्क। ये नेक्स्ट है डिजाइन पैटेंट, इस तरह का डिजाइन हमने बना रखा है बैग का। ट्रेडमार्क का ये है, ये पैटेंट, ये इस तरह की डिजाइन है, ये स्लीपर के हैं दिखे हुए। नेक्स्ट अब हम आते हैं व्हाई सेफगार्ड आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्यों सेफगार्ड किया जाता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने का रीजन सिर्फ यह है कि जो हम कमर्शलाइजेशन करते हैं, हम जो लाइसेंस लिए और इस लाइसेंस के अंतर्गत हमने इसको मार्केट में सेल किया अपने प्रोडक्ट को, तो उसकी जो कमर्शलाइजेशन बेनिफिट हो सिर्फ हमें हो, कोई दूसरा हमारे सेम प्रोडक्ट को कॉपी करके नहीं आगे बढ़ सके। इस पर क्या है, अगर हमारा प्रोडक्ट को सेम को कॉपी कर लेगा तो ऑब्वियसली हमारी मार्केट डाउन हो जाएगी। वो हो सकता है कि हमने अभी 100 रुपीज इन्वेस्ट करके हमने प्रोडक्ट को चलाया है और वो 10 रुपीज लगा करके, तो ऑब्वियसली उसके मार्जिन मतलब कॉस्टिंग कम है, तो उसकी मार्जिन मतलब वो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन करेगा और हमारे प्रोडक्ट को कम में बेचेगा। तो उसको सेफगार्ड करने के लिए हमने कॉमर्शलाइजेशन करके और लाइसेंसिंग करके इसको सेफगार्ड करते हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड ब्लॉकिंग कंपटीशन। कंपटीशन में हमारे प्रोडक्ट के कंपटीशन में हमारा प्रोडक्ट भले कैसा भी निकाले, पर जो हमारा नाम है, जो जैगवार का आज नाम है, दूसरे प्रोडक्ट सैनिटरी आइटम्स बहुत है मार्केट में, लेकिन हम जैगवार के ही पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि जैगवार की अपनी एक क्वालिटी है, अपनी एक पहचान है, दूसरे उसमें इंटरफेयर नहीं कर सके। तीसरा है रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स, इसमें क्या रिकॉग्नाइज होगा और क्या रिवार्ड रहेगा, ठीक है ना। तो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको मार्केट में कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, और इसके ऊपर जो रिवार्ड मिले वो हमारा रिवार्ड रहेगा। ब्रांड बिल्डिंग एंड टू रेज फंड, और बेसिकली क्या है, ये सब मेन थिंग जो है कि हम इस ब्रांड को कितना अच्छा बना सकते हैं और फंड को कैसे रेज किया जा सकता है। तो ये सब सारी चीजों को सेफगार्ड करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो हमारा जो इंटेलेक्चुअल जो भी हमारे आइडियाज थे, बिजनेस आइडियाज थे, उसको सेफगार्ड करने के लिए ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं वैलिडेट आइडिया एंड फाइल पैटेंट। हम अपने आइडिया को कैसे वैलिडेट करेंगे, लाइसेंसिंग करेंगे, पैटेंट कराएंगे वैल्यूएशन को, और मार्केट का रिसर्च में जाएंगे कि मार्केट में इस पैटेंट को जो हमने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, जैसे अभी आपने देखा टाटा मोटर्स अभी क्या है कि इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है, आप सब जानते हैं। तो भाई उसका सर्वाइवल कितना होगा, कितने लोग उसको बाय करेंगे, कितना वो प्रोडक्ट सेलेबल होगा, क्या वैल्यू हम रखें तो हमें ज्यादा से ज्यादा मार्जिन आए और हमारी चीजों को कोई कॉपीराइट नहीं कर सके। नेक्स्ट आते हैं मार्केट रिसर्च। तो बेसिकली मार्केट रिसर्च ये ऑल डिपेंड करता है हमारे मार्केट रिसर्च पर, हमारे प्रोडक्ट का। डॉक्टर साहब हमारी आवाज जा रही है ना? डॉक्टर साहब सर ऑडिबल, गुड गुड। नेक्स्ट सर आ रही है। तो हाँ कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं मार्केट रिसर्च। अब देखिए जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था टाटा मोटर्स का, तो टाटा मोटर्स बेसिकली क्या है, अभी इलेक्ट्रिक मोटर लॉन्च करने जा रहा है, आप लोग सब जानते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्या है कि जब हमने स्टार्टअप का कोई प्लान किया तो हम लोग अपनी ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, कि क्या हमें क्या करना है, इस चीज को कितने लॉन्ग ड्यूरेशन ये हमारा चलेगा स्टार्टअप, तो ये सब स्टार्टअप में और हमें क्या बेनिफिट
प्राप्त होगी, हमें क्या चीज होगा। तो इसके लिए हम अपनी एक ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस में, बिजनेस गोल क्या है हमारा, कहाँ तक हमारा, किस लेवल तक हमारा पहुंचेगा, ये एक प्लानिंग किया, पहला नंबर। दूसरा नंबर है डिटरमाइन रिसर्च डिजाइन, कि हमारा जो डिजाइन होगा वो किस तरह का होगा, हमारे प्रोडक्ट का कोई कॉपी नहीं कर सके, हमारी डिजाइन, ये जो डिजाइन है एक अलग ही तरह रहे, एक अलग मतलब दिखे, और ये डिजाइन किसी और के पास नहीं जाए। तीसरा है प्रिपेयर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, हम इंस्ट्रूमेंट को मतलब किस तरह से बनाएंगे और कैसा डिजाइन करेंगे, वो है। चौथा है कलेक्ट डाटा, मार्केट से हम डाटा लाएंगे कि कितना ये हमारा जो प्रोडक्ट बना वो मार्केट में कितना सेल होगा, कितना ज्यादा मतलब इसकी डिमांड होगी, उसकी एक डाटा कलेक्ट किए। पांचवा आ जाते हैं एनालाइज डाटा, उसको हम फिर एनालाइज करते हैं कि हमने मार्केट से रिसर्च किया, मार्केट में देखा कि भाई कितनी रिक्वायरमेंट है। आज हम इलेक्ट्रिक मोटर्स की बात कर रहे थे जैसे, तो इलेक्ट्रिक मोटर्स का डिमांड कितना है, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रिक मोटर से, कि भाई आज डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है और हो सकता है आगे वाले समय में डीजल पेट्रोल मिले ही नहीं, उसमें हम क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे। इलेक्ट्रिकल ईजी हो रहा है, सोलर पैनल से बन रहा है, और भी वेरियस वेज हैं जिससे कि जनरेट हो जाता है, तो उससे हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिकल मोटर्स आराम से इजीली चल सकता है। तो ये डिमांड एक्चुअली क्या है मार्केट में बहुत ज्यादा होगा। ये चीज डाटा को हम लेकर के फिर एनालाइज करते हैं उस डाटा को, और फाइनली क्या है विजुअलाइज एंड कम्युनिकेट फाइंडिंग्स, तो उसको फिर हम फाइंडिंग्स निकालते हैं कि हमारा टोटल आइटम्स एवरेज हम क्या प्लान कर रहे हैं, ये कितना बिक जाएगा। से 10,000 अगर हम कार बनाते हैं तो क्या 10,000 निकल जाएगा मार्केट में, हमें लगता है क्या कि हमने जो रिसर्च किया है उसमें से ये हमने 10,000 की प्लानिंग बनाया है कि हर महीने हमारी प्रोडक्शन 10,000 की कार की हो, वो 10,000 सेल हो जाएगी या नहीं होगी। तो उसके हिसाब से मतलब पहले वो विजुलाइज करके फिर हम उसकी फाइंडिंग्स को अपना निकालते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मार्केट रिसर्च अप्रोच। पहला अप्रोच क्या है कि भाई लोगों से हम मिलते हैं, कैसे हम लोगों के पास, कैसे हम जानेंगे कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। तो उसके लिए क्या है, लोगों से मिलेंगे, इन लोगों से इंटरव्यू कराएंगे, या तो फेस टू फेस मिले या टेलीफोन पर बातें करी, हाँ जी इस आइटम की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, क्या आपको ये लगता है ये आइटम सही चलना चाहिए, ये सही चलेगा। फिर सर्वे किया हमने ऑनलाइन मेल के थ्रू, क्वेश्चनर्स बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चनर्स हैं उसके जवाब दिया, फिर लिंक्डइन पर अपनी आइटम को अपनी वो उसको डाला और लोगों को वो देखा कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं। सेकेंडरी अप्रोच में हम आते हैं इंटरनल सोर्स, फिर उसका हम लोग क्या है कि एक बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमने बनाया, एक हमने प्रोजेक्शन बनाई कि हाँ हमारा ये प्रॉफिट हो, मतलब ये हमारी टोटल रेवेन्यू होगी, ये हमारे एक्सपेंसेस होगा, ये हमारा नेट ये क्या बोलते हैं प्रॉफिट रहेगा, ये बैलेंस शीट होगा, इसमें ये इन्वेस्टमेंट जाएगी, ये डेप्रिसिएशन होगा, और ये इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स है, सेल्स फिगर्स हैं, जो कि ऑब्वियसली कॉमर्शियल टर्म से आप लोग को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक ना, मतलब जब भी हम बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में ना हमेशा सबसे पहले क्या हो कि रेवेन्यू क्या जनरेट होगा, हमें क्या फायदा होगा उससे। आज हमने स्टार्टअप किया, स्टार्टअप शुरू तो कर लिया, लेकिन स्टार्टअप शुरू करने से हमें फायदा क्या मिलेगा आगे इन फ्यूचर टर्म्स में, तो वो चीज को पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। पहला अप्रोच क्या है कि मार्केट में ये बिके, मार्केटेबल है या नहीं है। दूसरा अप्रोच है कि इसमें प्रॉफिट रेवेन्यू क्या जनरेट होगी, हमें कितना फायदा मिलेगा। एक्सटर्नल सोर्सेस क्या होगा, किसके थ्रू हम लोग जाएंगे, जर्नल्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, इंडस्ट्री और मार्केट डाटा के हिसाब से हम लोग देखेंगे इस आइटम का कितना डिमांड है मार्केट में, कितना बिकेगा। एनुअल रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट डाटाबेस, डेमोग्राफिक्स, कंज्यूमर डाटा, इसके थ्रू हम लोग निकालते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारा पैटेंट वैल्यूएशन। पैटेंट वैल्यूएशन क्या कि जो हमने ये क्या बोलते हैं आइटम के लिए, प्रोडक्ट के लिए सोचा कि ये हम प्रोडक्ट बनाएंगे और इसको मार्केट में सेल करेंगे, तो उसकी हम एक बार वैल्यूएशन निकालते हैं। उसके वैल्यूएशन की जो हमने डिजाइन बनाई है, ये कार की डिजाइन को हमने, ये कार कितना मार्केट में बिक सकता है, तो कैसे कैसे, एक तो क्वांटिटी के बेसिस पर, एक इसका वैल्यू के बेसिस पर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है आईपी वैल्यूएशन। आईपी मींस यहाँ हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो हमने बिजनेस आइडिया को हमने जो सोचा है उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं कि इस बिजनेस आइडिया में से हमने कार बनाने के लिए सोचा था कि हम कार बनाएंगे, तो उस कार का हम क्या है कि इसका वैल्यूएशन क्या होगा मार्केट में, कितना बिकेगा, ये 10,000 बिक जाएंगे, 50,000 बिक जाएंगे, 10 लाख बिकेंगे, तो ये कितनी हमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए और क्या प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है।
तो ये बेसिकली क्या है, इसके बता रहे हैं टू इंक्रीज और टू फाइंड द बिजनेस वैल्यू फ्रॉम द आईपी थ्रू ऑप्टिमम मैनेजमेंट डिसीजन। हम लोग का नॉट ओनली सिंगल आइडिया नहीं हो सकता, ऑब्वियसली मैनेजमेंट का डिसीजन लेकर के मैक्सिमम क्या इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, क्या वैल्यू होगा। टू रेज फंड्स एंड सिक्योरिंग द फाइनेंसेस, मतलब फंड इसमें कितना लग जाएगा, कितना हम कैसे फंड को हम कहाँ से सोर्स कर सकते हैं और कैसे हम अपने फाइनेंस को सिक्योर कर सकते हैं। टू असेस द डैमेज क्लेम्स इन बिजनेस डिसोल्यूशन, अगर कोई बिजनेस की क्षतिपूर्ति हो गई, बिजनेस डिसॉल्व हो गया, तो उसके डैमेज को हम लोग कैसे भर पाएंगे। इंफ्रिजमेंट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, अगर कोई राइट ब्रीच हो गई है, ठीक है ना, इंफ्रिज हो गई है, तो उसको हम लोग कैसे उसको कर पाएंगे, उसका इंफ्रिजमेंट हो गया उल्लंघन की, कैसे हम इसको मतलब रीमेक कर सकते हैं, इसको रिपेयर कैसे रिकवर कर सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग और लिक्विडेशन प्रोसीजर एज इन मर्जर एक्विजिशन स्पिन ऑफ और बैंकरप्सी, अगर कोई बैंकरप्सी हो गई, मान लीजिए हमने 100 करोड़ बैंक से ले लिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले लिया, हमने कोई प्रोडक्ट बनाना चाहा और फेल हो गए, तो वो बैंकरप्सी अगर हो जाती है, हम लोग नहीं दे पाते हैं पैसे, प्रोडक्ट बना और मार्केट में नहीं बिका, स्पिन ऑफ मींस नई कंपनी हमने कोई का फॉर्म करना पड़ा, या कोई मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, इस केस में हम लोग कैसे इसको सेफगार्ड कर सकते हैं। A future unknown market will determine the value based on market demand and supply dynamics। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा अननोन मार्केट है, क्योंकि हमने तो ये सोचा कि जैसे हमने लोगों से इंटरव्यू करा, हमने ये सोचा कि भाई ये 10,000 हमारा प्रोडक्ट मार्केट में एटलीस्ट बिक सकता है पर मंथ। अब हमने, ये तो फ्यूचर है, अनप्रिडिक्टेड मार्केट है। सपोज हमने कार बनाना शुरू किया, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, इसी समय किसी और होंडा वालों ने भी लॉन्च कर दिया, उन्होंने भी अपनी कार बनाना शुरू कर दिया, वैसे ही इलेक्ट्रिकल का। तो क्या है कि अब हमने तो एक्सपेक्टेशन रखा कि जी हमारी तो 10,000 बिकेगी, अब मालूम चला अब हमारी 10,000 नहीं, सिर्फ 5,000 ही बिक रही, क्योंकि 5,000 होंडा वालों ने लॉन्च कर दिया। तो ये जो प्रोडिक्शन है ना, इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने जो बिजनेस आइडियाज को हमने रखा है, उसको हम कैसे सेफगार्ड लेकर के चलेंगे, सो दैट कि हमारा स्टार्टअप फेल ना हो। अब अगर नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस की क्वांटिटी में आते हैं पहला व्हाट, क्या है। दिस एनालिसिस हेल्प्स टू डिटरमाइन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द पेटेंटेड टेक्नोलॉजी फॉर द गिवन, जो हमने टेक्नोलॉजी डिटरमाइन किया है उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी, कितना होगी, कितना पीसेस हम बना सकते हैं, 10,000, 5,000, 2,000 वो। व्हाई, किस लिए। दिस प्रोवाइड्स वर्थ ऑफ द पैटेंट्स, तो भाई पैटेंट की क्या वैल्यू हम रखेंगे कि हमारा मार्केट में कितना, हम जैसे मान लीजिए हमने 10,000 बनाया तो ऑब्वियसली प्राइस कम होगा, अगर हमने 2,000 बनाया तो प्राइस ज्यादा होगा। तो ये क्वांटिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारी क्वांटिटी का प्रोडक्शन क्या होगा, कि टोटल कॉस्टिंग जब हम काउंट करेंगे तो उसके हिसाब से हम प्राइस डिटरमाइन कर पाएंगे। पैरामीटर्स क्या होगा, कॉस्ट बेस्ड, मार्केट बेस्ड और इनकम बेस्ड मेथड। नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब डिजाइन, क्वालिटी क्या रहेगी इसकी, कितना अच्छा क्वालिटी हम डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो दिस एनालिसिस बेस्ड ऑन द बिब्लियोग्राफिक फैक्टर्स दैट हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द patent which includes citations, broadness of the claims, कि मतलब हम क्वालिटी इतना अच्छा बनाए अपने आइटम का कि उसमें अगर कल को कुछ टूटता है, उसका कुछ नुकसान होता है, तो उसको हम कितना भरपाई कर पाएंगे। मान लीजिए अगर हमने कोई कार बनाई, कार में डैमेज आ जाता है, फिर ये आ जाता, तो कितना बार हमें रिकवर करना पड़ेगा, कितना हम उसको छूट दे सकते हैं, हम कितना बार कस्टमर को बोल सकते हैं कि हाँ जी आप लाइफ टाइम तक लेकर आओ, या 2 इयर्स के लिए लाओ या 5 इयर्स के लाओ, वो भी डिपेंड करता है। अब किसी को हमने कार बना दिया और लाइफ टाइम के लिए बोल दिया और वो 10 बार टूट गई, तो हमारी कॉस्टिंग बेकार हो गया सारा, हमने जो भी रेवेन्यू जनरेट की वो रेवेन्यू चली गई। क्यों चाहिए ये कि दिस फैक्टर हेल्प्स टू डिटरमाइन द रेटिंग ऑफ पैटेंट्स अमंग्स द सेट ऑफ गिवन पैटेंट्स, जो हमने पैटेंट डिजाइन बनाया है उसकी हम रेटिंग कर पाए कि कितनी, इसको हम कितने पैरामीटर्स में कितने लंबे ड्यूरेशन तक चला सकेंगे। पैरामीटर्स क्या है, लीगल स्ट्रेंथ ऑफ द पैटेंट, इसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ क्या रहेगा, अब स्ट्रेंथ ऑफ द पैटेंट क्या रहेगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस पर। अभी हमने पहले बताया था आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब इसमें क्या है, इसमें जो लीगल फैक्ट्स आते हैं कि इसमें लीगल स्टेटस क्या रहेगा क्वालिटेटिव में। तो दिस कैटेगरी हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द पैटेंट ड्यूरिंग द ग्रांट प्रोसेस बाय द कंसीडरिंग द ब्रॉडनेस ऑफ द क्लेम्स।
patent enforcement methodologies adopted by the company. कंपनी ने क्या मेथड अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है ना, इसके क्लेम्स की ब्रॉडनेस क्या रहेगी, पैटेंट स्टेटस क्या होगा, नेक्स्ट है लीगल पोजीशन ऑफ द स्ट्रेंथ, इस पोजीशन मतलब जो हमने पैटेंट को बनाया डिजाइन किया है उसका लीगल पोजीशन क्या होगा, पैटेंट टर्म रिमेनिंग कितना टर्म हम इसको रिपेयर कर पाएंगे, क्लेम कितनी बार हम कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल कवरेज क्या होगा, किस एरिया तक को हम कवर कर पाएंगे, मॉनिटरिंग अगेंस्ट इंफ्रिंजमेंट्स, अगर कुछ लॉस हो जाता है, कुछ ब्रेकअप हो जाता है तो उसकी कितना दिन तक हम उसके पार्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग क्या होगा, इन्फोर्समेंट क्या करेंगे, मतलब इस पर क्या उसने हो सकता है कोई प्रोडक्ट किसी को हमने बेचा और उसने हम पर क्लेम कर दिया, सर आपने तो ये प्रोडक्ट मुझे बेचा और 1 महीने के अंदर ये खराब हो गया और हम पर उसने सूट फाइल कर दी, सूट फाइल कर दी, तो हम क्या कितने दिन तक कवर करेंगे उसको, हमें वो प्रोडक्ट को पूरा रिपेयर करा करके देना चाहिए या न्यू प्रोडक्ट देना चाहिए, वो डिपेंड करता है, ये सारा डिपेंड करता है क्वालिटेटिव एनालिसिस पर। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये देखिए सामने एक आ रहा है, ये जो टेबल आ रहा है इस टेबल में देखिए, रिमलेस टॉयलेट विथ फ्लश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन apparatus, इसमें क्या है लीगल स्टेटस, क्या है अलाइव है, स्टेटस ग्रांटेड, इसमें किस डेट को एप्लीकेशन फाइल किया है, 3 सितंबर 2008 को, और तब कब तक वैलिड है, 3 सितंबर 2028 तक वैलिड है, तो मतलब 2028 तक इसमें अगर ये अलाइव है तो हम कोई भी रिमलेस जो टॉयलेट है उसको प्रॉब्लम होता है तो हम उसको रिपेयर करके देंगे। अब नेक्स्ट आइए, नीचे है 12 मार्च 2009 को हमने बनाया ये प्रोडक्ट, रिमलेस टॉयलेट विथ फ्लश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन apparatus, लीगल स्टेटस डेड है, मतलब इसको हम रिपेयर करके नहीं देंगे, तो ये वैलिडिटी तो है, इसका एक्सपायरी डेट है, पर हम इसका स्टेटस लैप्स हो गया तो हम इसको रिपेयर करके नहीं देंगे, इसका डेट है, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू हम कम रखेंगे, इसकी वैल्यू हम ज्यादा रखेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि गारंटी के ऊपर हम किस में गारंटी दे रहे हैं, किस में वारंटी दे रहे हैं, ये हमारे क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, आप ये टेबल देख पा रहे हैं, ये बार ग्राफ देख पा रहे हैं, पैरेंट स्टेटस, लीगल पोजीशन ऑफ द स्ट्रेंथ क्या रहेगा, पैटेंट टर्म रिमेनिंग क्या रहेगा, ब्रेथ ऑफ द क्लेम्स, ज्योग्राफिकल कवरेज कहां तक कवर करेंगे, लीगल प्रोसीडिंग, मॉनिटरिंग, इन्फोर्समेंट, यह मैंने आपको बता ही दिया था पहले। अब नेक्स्ट आते हैं टेक्नोलॉजी एंड मार्केट कवरेज अप्रोच। हमारा क्या है कि टेक्नोलॉजी हमने कैसा यूज किया है और कितनी एरिया तक कवरेज हम करेंगे, कौन कौन सी मार्केट को हम कवर कर पाएंगे, वो डिपेंड करता है हमारे क्वालिटी के ऊपर कि हमारा आइटम प्रोडक्ट कैसा है और हमने किस तरह का प्रोडक्ट बनाया है जो मार्केट में कितना सर्वाइव करेगा। तो इट कवर्स द एस्पेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूटिंग टेक्नोलॉजी एंड व्हेदर द इंफ्रिंजिंग कॉपी कैट्स आर इजी टू प्रोड्यूस, क्या मतलब जो हमारा प्रोडक्ट हमने बनाया है इस प्रोडक्ट को क्या ये कॉपी कैट कोई कर करके मार्केट में दे सकता है, whether the technology has been tested, जो हमने टेक्नोलॉजी बनाई है इसको टेस्ट किया है, and whether new skill equipment is required, कोई नया स्किल और कोई नया इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, it provides the position of the technology in the market। तो मार्केट में क्या इसका मतलब टेक्नोलॉजी कैसा रहेगा ये डिपेंड करता है। जैसे अब इसके ऊपर क्या है, इसको हम सेफगार्ड करने के लिए करते हैं लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, यूनिक टेक्नोलॉजी, सब्स्टिट्यूट टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग ऑफ द इन्वेंशन, प्रोडक्शन स्किल्स और इक्विपमेंट, प्री कमर्शियल टर्म ऑफ डेवलपमेंट, मार्केटिंग वैल्यू, प्रोडक्शन ऑफ इंफ्रिंजिंग कॉपी कैट्स, मतलब कोई हमारा कॉपी नहीं कर सके उसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे, आइडेंटिफाइबल इंफ्रिंजिंग प्रोडक्ट्स, कि हमारे डुप्लीकेट कोई अगर आइटम बनाता है मार्केट में तो हम उसको अपने प्रोडक्ट को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार ना लोगो हमने बना करके देते हैं और सेम लोगो बना करके मार्केट में बिक जाता है, तो उसको हम लोग कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं वो डिपेंड करता है। अब आ रहा है नेक्स्ट बिब्लियोग्राफिक फैक्टर्स। ये बिब्लियोग्राफिक फैक्टर्स बेसिकली क्या है कि हमारी कोई चीजों को ना कोई किसी को कॉपी नहीं कर सके। जस्ट जी, तो these factors need to be considered as they make huge direct impact on the value of the patent। ये हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना इम्पैक्ट करता है वो ये फैक्टर डिपेंड करता है। जैसे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्लेम्स, हम क्लेम्स कितने बार कवर कर पाएंगे, नंबर ऑफ डिपेंडेंट क्लेम्स,
एक इंडिपेंडेंट हो गया, और डिपेंडेंट क्लेम्स जो हमारे आइटम को मतलब कितने बार हम आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं, कितनी बार क्लेम हम दे सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स इन फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लेम, फॉरवर्ड साइटेशंस, बैकवर्ड साइटेशंस, इंटरनेशनल फैमिली। अब इंटरनेशनल फैमिली में आ जाते हैं कि मोर नंबर ऑफ द पैटेंट्स फैमिली हेल्प्स टू कवर द मोर डोमिनेंट कंट्रीज इन व्हिच द पैटेंट हैज हाई वैल्यू। जहां पर हाई वैल्यू है पैटेंट का, क्या कि वहां पर डिमांड ज्यादा है और वहां पर हमने प्रोडक्ट को ज्यादा बेचा हुआ है, तो उस जगह पर ज्यादा मतलब इंटरनेशनल फैमिली जो हम मतलब हमारी प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड बिक रही है, तो हम सब जगह को कवर कर पाए। लिस्ट यही है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्लेम्स, ये टेबल दिखाया हुआ है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट क्लेम्स, कितनी चीजों को हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया था बेसिकली, हमने आपको बताया था क्वालिटेटिव, कि क्वालिटी हम अपने आइटम को प्रोडक्ट का कितना अच्छा रखें और कैसा रखें, कितना बेस्ट रखें, कि सो दैट कि हम अपनी चीजों को कवर कर पाए और उसको हम बेनिफिट दे सकें। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं हमें? ऑडिबल सर, ऑडिबल। अब नेक्स्ट आते हैं क्वांटिटी। अभी क्वालिटी के बारे में बताया, गुणवत्ता के बारे में बताया कि हम क्या हमारी क्वालिटी होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट के बारे में। अब नेक्स्ट है क्वांटिटी, कि हम कितनी क्वांटिटी को एनालिसिस, कैसे एनालिसिस करें। तो क्या है, टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन, परसेप्शन ऑफ द मार्केट। तो ये सब बेसिकली क्या है ना, हमें ये देता है, एक आइडिया देता है कि हम अपने आइटम को कितना बनाए। अब हमने 10,000 प्रोडक्ट बना लिया, अब 10,000 प्रोडक्ट तो बना लिया, मार्केट में 10,000 प्रोडक्ट की जगह 5 ही बिका और 5,000 में भी प्रॉब्लम्स आ गए। तो इसीलिए हम अपनी प्रोडक्ट को इतना बनाएं जिससे कि हमारी इन्वेंट्री स्टोर ना हो, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बिके और उसको सर्विस हम दे पाए। अब हमने 10,000 प्रोडक्ट बना तो दिया, 10,000 प्रोडक्ट सपोज सेल भी हो गया, हम सर्विस नहीं दे पा रहे। तो हमारा और टर्म्स ऑफ यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, ये डिजाइन करता है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि हमारा जो प्लानिंग है, हमारी जो आइडिया ग्रो किया था, उस आइडिया पर हम ये विजन को भी रखें और अपने बिजनेस में इंक्लूड करें। या ये जैसे अभी इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, वायन लाइसेंसर कंपनी है टोयोटा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कंपनी ये। इसमें पैटेंट पूल लाइसेंस एग्रीमेंट है 2016, $1 मिलियन, कितने पैसे लगाए, $20। ऐसे ही मतलब जस्ट एग्जांपल दिया कि हमने कितने पैसे इन्वेस्ट करे, उसमें क्या प्रोडक्ट हमारा बन सकता है और कितना उसमें रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ये है कुछ क्वांटिटी को, जब भी हम क्वांटिटी बनाते हैं, क्वांटिटी बनाने से पहले हमने जो डिजाइन करते हैं, पहला डिजाइन तो यही था कि मार्केट बेस्ड मेथड, कि मार्केट में कितना ज्यादा से ज्यादा बिक पाएगा। दूसरा मेथड है कॉस्ट बेस्ड मेथड, कि इसमें कितना कॉस्ट लगेगा। इसलिए जस्ट ये बताया हुआ, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट एक्सपेंडेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट्स इकोनॉमिक वैल्यू। टू डिफरेंट टेक्निक्स आर मेनली यूज्ड टू मेजर कॉस्ट। पहला है रिप्रोडक्शन कॉस्ट मेथड। ये क्या है, estimations are performed by gathering all costs associated with the development of of the patent under valuation. दूसरा है replacement cost method. Estimations are performed on the basis of the cost that would be spent to obtain equivalent patent assets with similar use of the functions. मतलब क्या है कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको बना करके हमने मार्केट में बेचा, उसका क्या है, अगर कुछ प्रोडक्ट मान लीजिए वो उसमें डिफेक्ट आ गया, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड क्या रहेगा, उसको हमने कितना, उसको भी एस्टिमेट करके चलना होता है, उसके हिसाब से फिर उसके भी कॉस्ट डिजाइन किए। दिस मेथड इज नॉट यूज्ड ड्रिवन एंड डाटा यूज्ड always refers to the past, generally used to verify plausibility or to determine minimum price for sales, कि कम से कम क्या प्राइस लगेगी जिसमें कि हमारा ये प्रोडक्ट बना, और अगर कभी ये टूट गया तो हमने रिप्लेसमेंट कॉस्ट में क्या हम प्राइस डाल करके हम इस आइटम को बना सकते हैं। Next, income-based method. Income-based approach is based on the future cash flow driven by the particular piece of the intellectual property, that is patents of the given technology. The following variables are needed when using an income-based approach. एक income stream हो गया, estimate of patents useful life, कितना life रहेगा, क्या इनकम आएगा इस पर, पैटेंट स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर क्या होगा, रॉयल्टी रेट्स क्या होंगे, डिस्काउंट रेट्स क्या होगा, कितने हम डिस्काउंट दे सकते हैं और इस पर रॉयल्टी कितनी मिलेगी। चौथा है लाइसेंसिंग। अब लाइसेंसिंग भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे स्टिक लाइसेंसिंग होगी, कैरेट लाइसेंसिंग होगी, क्रॉस लाइसेंसिंग होगी, कंपल्सरी एंड वॉलंटरी लाइसेंसिंग, एक्सक्लूसिव एंड नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग।
मतलब जो भी आइटम को प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे उसका हमारा लाइसेंस भी होना चाहिए कि हाँ ये हमने एक गार्ड कर दिया। जैसे आप कोई फ्रिज खरीदने जाते हैं, एक वैलिडिटी आती है, इसका लाइसेंस बनता है, हाँ इस डेट को हमने परचेज किया था, इससे इस डेट तक ये वैलिड है। तो ऐसे ही लाइसेंसिंग हम लोग डिपेंड करता है कि स्टिक लाइसेंसिंग क्या होगा, कितने दिन तक ये चलेगा। कैरेट लाइसेंसिंग है या क्रॉस लाइसेंसिंग है, तो कितने दिन तक चीजों को हम चला सकते हैं। नेक्स्ट है लाइसेंस एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट टू मेक, have made, use, export, offer for sale, sell licensed products in the field of use during the term. Fees and royalties involve license initiation fees, license maintenance fees, fees milestone and payment, and earned royalties. अब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है कि भाई हमें इस पर जो आइटम हमने बेच रहा है इस पर हमें फीस एंड रॉयल्टी क्या रहेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी, टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड टर्मिनेशंस, patent prosecutions and maintenance, infringement, limitations of liability, disclaimer of warranties and insurance. नेक्स्ट है समरी। अब हम आते हैं जो हमने अभी डिसाइड किया था बिजनेस को कहां से डिसाइड किया था, स्टार्टिंग किया था कि हमने अपनी आइडियाज को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो प्रोटेक्ट पैटेंट मींस हमने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी बिजनेस आइडिया हमने रखे थे उसको हमने प्रोटेक्ट किया। दूसरा आ गया मार्केट रिसर्च पर कि मार्केट रिसर्च क्या होगा। तीसरा हमने इसका वैल्यूएशन, आईपी वैल्यूएशन लगाया कि इसके कितने हमने प्रोडक्ट बनाना है और कितना मार्केट में सेलेबल होगा। अब चौथा है लाइसेंस करके इसको हम मार्केट को कैसे बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है ना, जो स्टार्टअप के बारे में मैंने एक मतलब एक आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दिया कि स्टार्टअप है क्या। अब आप लोग की कोई क्वेरी हो तो आप स्टार्ट करें सो दैट मैं इसका जवाब दे सकूं। हेलो डॉक्टर साहब। Hello. Yes, sir. Say audible. हाँ Dear students, हाँ, if you इससे have any audible है। question, मैं you can यही ask. कह रहा था, हमने हाँ ये जो पीपीटी है बेसिकली पीपीटी मैंने जस्ट आप लोग को समझाया कि पीपीटी में है क्या। स्टार्टअप बेसिकली क्या है, एक बिजनेस आइडियाज है जो कि हमारे मतलब मन में ग्रो करता है, उसको हमने उसको बनाया बिजनेस को कि हमने आइटम को कितना बनाना चाहिए, उसमें क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं और क्या राइट्स होते हैं। तो बेसिकली क्या है ना, जो ये हम अपनी जो बिजनेस आइडिया को सेफगार्ड करते हैं, उस कैसे कैसे सेफगार्ड करते हैं वो मैंने आप लोग को बताया। अब क्या है, ये हमारा पीपीटी तो खत्म हो गया। आप लोगों को क्या समझ में आया आप आगे बढ़ाएं, तो फिर मैं, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए, तो फिर मैं इसको जवाब दूं। Yes. किसी स्टूडेंट ने Student? क्वेश्चन पूछा था, फील फ्री टू आस्क, बिना शर्माए पूछिए, बिना घबराए। यस, कोई भी पूछिए, किसी भी कोई भी चीज पूछिए आप। क्या स्टार्टअप से आपने क्या समझा, अभी मैंने आपको 10 मिनट मैंने बोला स्टार्टअप के बारे में, आप मुझे स्टार्टअप से क्या समझे और क्या जानना चाहते हैं, तो मैं उस पर ग्रो करूं, मतलब उस पर थोड़ा सा लाइट करूं, उसके जवाब दे सकूं मैं। जर्नलिस्ट प्रभा पहले पूछो बेटा। जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट प्रभा गौतम। अच्छा ऐसा करता हूँ डॉक्टर साहब, मैं ना ये पीपीटी जो मैंने बनाया हुआ है, ये पीपीटी आप लोग को शेयर करता हूँ, ये यूजफुल है आप लोग के लिए। एक बार ये पीपीटी भी गो थ्रू हो जाइए, नेक्स्ट टाइम अगर हमारा कोई प्लस में एक ना गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है इसके लिए स्टार्टअप के लिए, तो वो भी मैं स्टार्टअप इंडिया किट के नाम से है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है ना, तो सो दैट कि बच्चे गो थ्रू हो, और उसमें कोई भी क्वेश्चन आता है बेटा, आप लोग को कुछ भी लगता है, एनीथिंग इफ यू आर फ्री टू आस्क, तो मेरा नंबर्स है, मेरे मेल आईडी है उसमें पीपीटी में डाले हुए, आप एनी टाइम यू कैन राइट टू अस और हम लोग रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज यू कैन कॉल टू अस। ठीक है ना सर, we are very thankful to you for this very good presentation on the startup. And sir, I am sure this it will help the student in a lot just to develop their mindset, what is startup and how to achieve their targets. And sir, we are thankful for
So for this taking time from your schedule. And sir, I feel really very obliged to you just for guiding the students how to adopt a positive mindset rather than being governed by a traditional one. And right now, we should try to be an owner, a business mind, not a person who is seeking only service, job, etc. So I am sure if we are running our own startup, then we can become an owner. We can become an employer rather than becoming an employee. Sir, I'm thankful to you. So I thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. I'm sharing the data just on right now. Dr. Sir, I'll share you. You can circulate this to all the students. Let them to go through, and in case Sir, any sure. query, they can revert to us. Yes, sir. Yeah. Sir, I will. Thank you, sir. Thanks.